Hello everyone, welcome back to Is the Clad. So after a rather long break, I'm back with working on the YouTube channel. In fact, my exams are now over, so I would be focusing or putting more focus into Is the Clad from now on. Okay, so that would include more video lessons, more sectional tests, and sectional test series would be coming up. More tips and tricks, more work on the current affairs spreadsheet, on the legal reasoning spreadsheet and all. So for now I'm very much focused on doing or working on Ace the Clad. And also I hope you would also do or play a small part in helping this channel grow by probably sharing the video with all the friends, by sharing our posts on Telegram channel, so that both our channels grow, right? The YouTube and the Telegram channel. And doing such things, just such small things. Okay, this video is about the 4-step strategy to analyze CLAT mocks. This is Ritik Sinha and this has been presented by acetheclat.in. So broadly, the problem that students face over here is this problem statement is this, and then I have a solution for this. What is the problem? I am unable to analyze my mocks properly. My mocks analyze nahi kar pa raha, and I have little to no clue about my mistakes. Okay, I have little to no clue about my mistakes, and I end up making the same mistake in the next mock and the subsequent mock and the subsequent mock and so on. This is the problem. कि I hope you are getting this, कि students जो हैं they are not able to analyze their mocks, and due to that what is happening, their subsequent mocks are taking a toll. Right, please excuse me for my bad handwriting. Okay, the subsequent mocks are taking a toll, and this is probably this is basically the problem. What could be a solution? An effective way to analyze the mocks. Okay, here is it. Here it is, the solution. Okay, let's talk about solution. Before that, I would want you to make the mock analysis notebook as soon as possible. You should be taking relevant mocks. That is the most important thing probably, है ना, after making a mock analysis notebook. And thirdly, you should be willing to spend over 2 to 3 hours on your mock analysis. Okay, over 2 to 3 hours on mock analysis. Why is this important? Because to get to churn out every learning from the mock that you have given just now, right, you should be prepared कि, or mentally prepared basically कि you know what, मुझे अभी 2 से 3 घंटे एनालिसिस में भी देने हैं. एंड बहुत लोगों की मैंटेलिटी होती है, आई वुड नॉट लाई, आई वॉज लाइक दिस एज वेल ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन डेज, कि मोस्टली संडे को मॉक्स देते हैं हम लोग, है ना, एंड 3 to 5 या 4 to 6 या 2 to 4 के बीच में मॉक दिया. और हमारा क्या मैंटेलिटी होता है कि जैसे ही 5 बजा, जैसे ही मैंने लास्ट क्वेश्चन का OMR फिल किया या मॉक टेस्ट को सबमिट बटन दबाया बेसिकली, राइट, मेरा काम हो गया. अब हो गया संडे का पूरा काम. मोस्टली यही करते, कुछ लोग हाँ जाके पढ़ते, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसा सोचते कि नहीं, ये जो मॉक है ये सिर्फ 2 घंटे का नहीं है, बट ये 5 से 6 घंटे का है. ये मैंटेलिटी तुम्हें जल्द से जल्द डेवलप करनी होगी, क्योंकि अभी हम लास्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में हैं. एंड यू नो व्हाट, अब यू शुड हैव बिकम वेरी वेरी सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, है ना. मॉक्स को सीरियसली लेना शुरू कर दो. अब मॉक्स के रैंक पे उदास होना भी शुरू कर दो थोड़ा बहुत, ठीक है, ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है. और अगर मॉक में रैंक्स अच्छे आ रहे हैं तो भी ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है. यू शुड नॉट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, एंड यू नो just keep your basics intact. उसके बाद everything would revolve around that. Okay, so in the next slide I would be showing the 4-step process. Step 1, 2, 3 and 4. पहला है being proactive in starting the analysis. So what I mean by that is, firstly you have to develop that mentality कि mocks जो है मेरे 2 घंटे के नहीं है, मेरे 5 से 6 घंटे के हैं. ओके, 5 से 6 घंटे के मॉक है मेरे, एंड आई शुड बी वेरी प्रोएक्टिव इन डूइंग द एनालिसिस. ओके, व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आफ्टर यू हैव गिवन द मॉक, यू नो, बिटवीन 12 to 24 आवर्स. ओके, जैसे मैंने मॉक अगर आज
4 बजे ख़त्म किया, a good time to start the mock analysis would be tomorrow or the first thing that I do tomorrow. Okay, मतलब 10-11 बजे कर रहा हूँ. That would be an ideal time. And for some of you, for some of you it could be 8 p.m. on the same day itself. Hear me out when I say this. मतलब मैं किस लिए ये बोल रहा हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो. 12 से 24 घंटे मैंने इसलिए दिए. 24 आवर्स तुम्हें समझ में आया होगा कि you should not do the analysis, or it would be more ideal if you do the analysis within 24 hours, because there are some key strategic mistakes that you make in the paper or the mock examination, right? और वो mistakes तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम उसे कब भूल जाते हो. ओके, और जैसे ही भूल गए फिर तो काम ही ख़त्म हो गया. ओके, दिस इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट 12 से 24 घंटे, और 12 घंटे का मैंने टाइम लिमिट जो लोअर लिमिट है मैंने इसलिए दिया है, ये सब पे अप्लाई नहीं होता है. अगर कोई इंसान या कोई स्टूडेंट अगर मॉक्स में अच्छा कर रहा है उसके हिसाब से, ओके, इफ़ ही और शी इज़ कॉन्फिडेंट इन डूइंग मॉक्स, then he should probably start his or her analysis probably just after the mock or just a few hours after the mock. okay, लेकिन ज़्यादातर लोग के साथ ये केस होता है, इसलिए मैंने 12 to 24 आवर्स का एक लिमिट दिया कि बहुत लोगों का मॉक देते समय ना मॉक अच्छा नहीं जाता है. सो टू लेट दैट फीलिंग सेटल इन, एक 12 घंटे भी ज़्यादा हो गए, लेकिन 8 घंटे तो लग ही जाते हैं ना कि हाँ भाई मॉक हो गया, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है यार मॉक बिल्कुल ख़राब हो गया, बहुत ही ख़राब गया, अब मैं क्या करूँ, प्रिपरेशन छोड़ दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ. ओके, इसलिए 8 घंटे तक, मतलब 8 आवर्स तक वो जो फीलिंग है, वो जो इमोशंस है वो सेटल हो जाएंगे. एंड फिर यू वुड मोस्टली बी री एनर्जाइज्ड आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप. इट कुड बी आफ्टर अ नैप ऑफ 15 to 20-30 मिनट्स, जो भी, या फिर थोड़ा प्ले टाइम कर लिया, थोड़ा इन्जॉय कर लिया, जो भी कर लिया, उसके बाद यू वुड बी बैक, मतलब योर फोकस वुड बी बैक एंड देन यू कुड स्टार्ट योर एनालिसिस. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कि पहले क्या करना है मॉक एनालिसिस शुरू करने से पहले भी. ओके, द सेकेंड एंड probably the most important thing to do over here is to retake the mock without seeing the solution. There is a concept known as absolute score or the actual score and your potential score. Okay, what you have to do is, if you मतलब क्या होता है ना मॉक में देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, राइट. मॉक में कई बार 5 मिनट में अगर 2 पैसेज सॉल्व करने हैं तो यू पैनिक एंड शायद दोनों ही गलत हो जाते हैं, कई सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस दोनों पैसेज के. तुमने मॉक दे दिया, मतलब ये स्टेप ऐसा होता है, समझो, लेट मी मेक अ डिफरेंट स्लाइड. ये स्टेप ऐसा होता है कि तुमने अभी मॉक दिया, ठीक है. मॉक में समझो देयर वेर 5 क्वेश्चंस ऑफ अ पैसेज जिसका ऑप्शन रैंडमली A, B ऐसा तुमने मार्क किया था. ये करेक्ट हुआ, ये करेक्ट हुआ, ये करेक्ट हुआ, ये करेक्ट हुआ, ये करेक्ट हुआ. वेल, दिस डज नॉट मैटर, ठीक है. मॉक देने से पहले, मॉक देने के बाद, मॉक देने के जस्ट बाद, मॉक एनालिसिस से पहले तुम्हें सोल्यूशन भी नहीं देखना है, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये ऑप्शन सही है कि गलत है. ओके, अगर समझो 1 2 3 4 5 ABC तुमने ABC तुमने मॉक में मार्क किया था, लेकिन वापस से मॉक देते हुए समझो BACDB ऐसा कुछ मार्क किया था तुमने, ठीक है. तो तुम्हारा एब्सोल्यूट स्कोर क्या होगा, ये होगा जो तुमने मॉक में किया, एक्चुअल स्कोर. और जो पोटेंशियल स्कोर है वो ये होगा. मतलब कई बार क्या होगा, तुम नोटिस करना, इफ़ यू गेट 3 out of 5 ओवर हियर और इफेक्टिवली 2.5 ओवर हियर, तुम यहाँ पे 4 out of 5 या फिर कई बार 5 या फिर कई बार 3.75 इस तरह के स्कोर लाओगे. आर यू गेटिंग मी? दिस इज़ वेयर पोटेंशियल स्कोर मैटर्स. नोट दिस डाउन कि मोस्टली in 99% cases your potential score would be more than your absolute score. Okay, potential score would be more than your absolute score. और उसी जो डिफरेंस है, देयर इज दिस डिफरेंस, राइट, एब्सोल्यूट स्कोर और पोटेंशियल स्कोर में, उसी को ब्रिज करने के लिए द सेकेंड स्ट्रैटेजी कम्स इनटू पिक्चर. ओके,
पहले तुम्हें समझ में आ गया ना कि कैसे रीटेक करना है मॉक को. अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके. और और जो वो डिफरेंस है उसे ब्रिज करने के लिए जो 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 तुम्हें काम करना है, जो तुमने स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किए हैं, वो तुम स्टेप 3 में करोगे. मतलब स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे. बहुत कुछ तुम्हारे बाय 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 मेमोरी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. कि अगर तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग है तो तुम्हें याद रहेगा कि मैंने कौन से पैसेज में ज़्यादा टाइम दे दिया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे दिया, कौन से पैसेज में मैंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया, कौन से सेक्शन में मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, कौन सा सेक्शन मैथ सेक्शन जैसे वो क्या छूट गया बिल्कुल ही. इस तरह के स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स को नोट करना या दिमाग में लाना, आइडेंटिफाई करना, दैट वुड बी द थर्ड स्टेप. एंड द फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप विदाउट विच ऑल ऑफ दिस वुड बी नथिंग, है ना. तुम्हें कुछ याद नहीं रहने वाला है. नोटिंग एवरीथिंग डाउन in either your mock analysis notebook or the Notion page or any Google Docs document या कहीं पे भी तुमने जो mock analysis digital form में एक notebook बनाई है. Okay, that my friends is a good step to analyze your mocks. Firstly, be proactive in starting the analysis. Secondly, retake the mock without looking at the solution. Solution तुम्हें पता नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं. Okay, तभी तुम्हें तुम्हारा एक्चुअल पोटेंशियल स्कोर पता चलेगा. ओके. और तभी डिफरेंस दिखेगा एक्चुअल स्कोर और पोटेंशियल स्कोर में. मैं बताऊँ कैसा डिफरेंस होगा. अगर तुम्हें मॉक्स में 80 आया है एक्चुअल स्कोर, तो डिफरेंस तुम्हें 15 तक का दिख सकता है नॉर्मली. अगर 40 है तो ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, 70, ऐसा 30-50 का भी डिफरेंस हो सकता है. लेकिन अगर 80 है तो अराउंड 15 का होगा. जैसे 120 आएगा ना, तो फिर ये ज़्यादा नहीं होगा, फिर ये 4-5 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं होगा डिफरेंस. आई होप ये ऐसे लीनियर वे से ग्रो नहीं करेगा. जितना ज़्यादा तुम्हें मार्क्स आएंगे उतना कम डिफरेंस होगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली ऑलमोस्ट हिटिंग योर पोटेंशियल. ओके, दैट इज़ हाउ. और जो क्वेश्चन है इसी तरह के क्वेश्चन होंगे यार, कि मैंने कहाँ पे. और हाँ, एक बात और, उस पर मैं आता हूँ. उससे पहले एक बात और, कि यू नीड नॉट नोट डाउन द सॉल्यूशंस इन द मॉक एनालिसिस नोटबुक और पेज. वो तुम किसी और नोटबुक में करना, ठीक है. ये नोटबुक उसके लिए नहीं है. इसमें सिर्फ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स नोट करना है कि कहाँ पे मैंने टाइम ज़्यादा से मतलब टाइम ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, है ना. कहाँ पे. वन मोर थिंग, कोई और तरीके का मिस्टेक, रैंडम मिस्टेक, कि मैं बहुत नींद में था क्या मॉक देने से पहले, डिड आई नॉट गेट इनफ रेस्ट, या फिर मैं ज़्यादा ही खेल के आ गया, इस तरह से समझ रहे हो कि मैं फुल्ली कंसंट्रेट नहीं कर पाया क्या. या फिर कुछ और तरीके के मिस्टेक्स होते हैं कि जैसे मैं मॉक के बीच में 2-4 बार उठ गया क्या, वॉशरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए, या कुछ भी करने के लिए. ओके, this is about time that you should start taking mocks as seriously, not as seriously but almost as seriously as probably you are taking your final examination, final CLAT. ओके, इस तरह से तुम्हें मॉक्स को अब लेना की ज़रूरत है. ओके, आई होप जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर होगी. कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट डाउन. ओके, वीडियो पसंद आया प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड मेक द मॉक एनालिसिस नोटबुक राइट नाउ. अभी जाओ नोशन पे पेज बना दो, या फिर एक नोटबुक को मॉक एनालिसिस नोटबुक बना दो, या एक नोटबुक के सेक्शन को मॉक एनालिसिस नोटबुक बना दो. और नॉर्मली 1 से 2 पेज का तुम्हारे लर्निंग्स, तुम्हारे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स होने चाहिए. ओके, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स एक तरफ लिखना है ना, मतलब एक पार्ट में लिखना पहले, फिर लर्निंग्स लिखना कि अगले मॉक में मैं क्या अवॉइड करूँगा. इसी से ये जो प्रॉब्लम था ना कि आई एम अनेबल टू एनालाइज माई मॉक्स प्रॉपरली, ये सॉल्व हो गया. आई हैव लिटिल टू नो क्लू अबाउट माई मिस्टेक्स का क्लू मिल जाएगा जैसे ही तुम पोटेंशियल स्कोर हिट करोगे. जैसे ही तुम पोटेंशियल स्कोर देखोगे, मतलब हिट नहीं करोगे, पोटेंशियल स्कोर देखोगे और जैसे ही इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि मैंने कैसे कैसे मिस्टेक्स करे, एंड वही जो लर्निंग्स तुम नोट करोगे उससे यू वुड बी एबल टू मिनिमाइज. आई एम नॉट सेइंग कि यू वुड बी completely eliminating, but you would be able to minimize the mistakes. एंड वैसे ही अगर तुम्हारा स्कोर अभी 95 है, अभी पोटेंशियल स्कोर, तो 80 से 83 जाएगा, 83 से 85 जाएगा, 85 से 89, और वैसे
प्रॉब्ली 87 भी जाए, ऐसे ऐसे ग्राफ है ना। अगर कौन सा ग्राफ बोलेगा, स्टेयर केस ग्राफ जो होता है कि टाइम इधर है, मॉक स्कोर इधर है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा बढ़ा, थोड़ा नहीं कम हुआ, लेकिन फिर ज़्यादा बढ़ गया, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर ज़्यादा बढ़ गया, फिर थोड़ा कम हुआ, इस तरह से। ओके, अगर पूरा एकदम परफेक्ट बना तो ऐसा स्टेयर केस टाइप बनता है ना। यहाँ से तुम देख सकते हो शायद से। ओके, आई होप यू गॉट मी। नहीं भी समझ में आए तो कोई बात, ठीक है। गेट इन टच विथ मी इफ़ यू वांट। तुम्हें पता ही होगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम इज़ लाइव, द मेंटोरशिप प्रोग्राम इज़ लाइव। ओके, I help students personally over there. Here is my phone number 8104107597. कोई जनरल डाउट या क्वेरी है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। 5-10 मिनट आराम से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। eastheclat@gmail.com पे अगर ईमेल करके मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो दैट इज़ देयर। एंड eastheclat.in इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पोस्ट करते रहता हूँ। बट उससे इम्पॉर्टेंटली टेलीग्राम चैनल जो है, if you are watching this video on YouTube or if you are coming to know about Ace the Clat for the first time on YouTube, प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। ज़्यादातर कंटेंट चैनल पे भी हो, काफ़ी सारा कंटेंट टेलीग्राम चैनल पे भी होता है। ओके, आई होप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगेन, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ press the like button, share this video with as many people as possible. I'll see you in the next one. Till then, goodbye, take care, and all the best.